Hello friends, welcome to classes by Lab Doctor, and in today's class we will be discussing about thrombocytosis or high platelet count. You all know that जो bone marrow में hematopoietic stem cells है, it will divide into myeloid and lymphoid, and the myeloid progenitor cells will give rise to megakaryocyte, which will give rise to platelet. So the myeloid stem cell will become megakaryoblast, मेगाकैरियोसाइट एंड देन द प्लेटलेट. सो प्लेटलेट्स को कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के पीसेस है ये मेगाकैरियोसाइट के. सो जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रहेगा दैट विल बी बिटवीन 1,50,000 to 4,50,000. सो इफ इट इज लेस देन 1,50,000 वी कॉल इट एज thrombocytopenia, and if it is more than 4,50,000 we call it as thrombocytosis. So there are some physiological variations also. For example, छोटे बच्चों में पहले it will be high, the platelet count will be high, बाद में वो adult के level पे आता रहेगा, and after exercise वो ज़्यादा हो सकता है, अगर high altitude पे रहते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. ये थोड़े physiological variations है. So अगर platelet ज़्यादा हो गए तो क्या problem हो सकता है? बिकॉज प्लेटलेट्स विल बी मोर, वो क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, एंड वो थ्रोम्बस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है, विच कैन लीड टू वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. ब्रेन में अगर ब्लॉक किया तो स्ट्रोक हो सकता है, एंड हार्ट में अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है. प्रेगनेंसी में ऐसे क्लॉट्स हुए तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो दीज आर द डेंजर्स ऑफ हाई प्लेटलेट काउंट. So there are two things you have to remember, two terminologies. एक है thrombocytosis. Thrombo मीन्स ये जो प्लेटलेट्स है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि वो थ्रोम्बस फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है. सो थ्रोम्बोसाइट मतलब सेल्स. सो थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज इन प्लेटलेट्स. ये सेकेंडरी कॉजेस के वजह से जब भी ये प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं तब हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस. There is another word called as thrombocythemia. ये भी सेम ही है, platelets are increased, but only thing is here there is a primary cause. मतलब ये CML में हो सकता है या polycythemia vera में, myelofibrosis में, ET में. So this is called as thrombocythemia. So दोनों सेम टर्मिनोलॉजीज है, एक प्राइमरी कॉज है और एक सेकेंडरी कॉज है. So now let's see what are the causes of high platelets. So as I've told you, there are certain secondary causes. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, लंग में इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक्ट में जेनाइटल इन्फेक्शंस या क्रॉनिक परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन है, लाइक COPD है, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज है, SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीजेस में, क्योंकि these inflammations can trigger high platelets. So inflammation, infections में भी reactive प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं. सेकेंड इज इन केस ऑफ एलर्जिक कंडीशंस, एलर्जिक अस्थमा हो, डर्माटाइटिस हो, फूड एलर्जी हो, there also there can be reactive thrombocytosis. Iron deficiency anemia. So in iron deficiency anemia there might be blood loss. So as a response वो react करके ज्यादा platelet हो सकते हैं. Hemolytic anemias में, splenectomy में spleen platelets को निकालते रहता है, तो हमने spleen को ही निकाल दिया तो platelet का destruction नहीं होता है ज्यादा and platelet number might increase. Some of the medicines like NSAIDs हो, steroids हो, they can also increase the platelet count. थोड़े बहुत cancers can increase the platelet count, especially the paraneoplastic syndromes. Those can increase the platelet count. Paraneoplastic syndromes like those associated with lung cancer, breast cancers, etc. So उसमें भी there might be paraneoplastic thrombocytosis. एंड द प्राइमरी कॉजेस, प्राइमरी मतलब बेसिकली वो प्लेटलेट प्रोडक्शन या प्लेटलेट में ही कुछ तो प्रॉब्लम है, वेर इन देर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर platelets. Like it can happen in ET, it can happen in chronic myeloid leukemia में आपने देखा है वो ज्यादा हो जाता है. In case of myelofibrosis it can increase. So
essential thrombocythemia is one such condition. तो what is this essential thrombocythemia? So जब भी हम essential thrombocythemia का हम diagnose करेंगे तो हमको कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, लाइक प्लेटलेट काउंट शुड बी मोर देन 4,50,000 हो. अगर बोन मैरो हम देखेंगे तो देयर शुड बी इंक्रीज्ड इन मेगाकैरियोसाइट. सो मेगाकैरियोसाइट ज्यादा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ये हाइपर लोब्यूलेटेड होने चाहिए, एंड हमको बाकी के कोई भी जीन ट्रांसलोकेशंस नहीं मिलने चाहिए. लाइक सपोज बीसीआर एबीएल, अगर बीसीआर एबीएल मिल गया तो हम उसको सीएमएल में कैटेगराइज कर देंगे, या पॉलीसाइथीमिया वेरा का कोई म्यूटेशन मिल गया तो उसमें हम कैटेगराइज कर देंगे. सो देयर शुड बी नो जेनेटिक म्यूटेशन फॉर सीएमएल, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस और पॉलीसाइथीमिया वेरा. ये ईटी विल हैव दिस जैक2 CALR mutation, and suppose if there is a presence of clonal marker for evidence of reactive thrombocytosis also, we take it as a minor criteria for essential thrombocythemia. So देखिए ये पेरिफेरल स्मीयर है, ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया जहाँ पे प्लेटलेट्स काफी सारे बढ़ गए हैं, एंड दिस इज दी मेगाकैरियोसाइट. सो कितने क्लस्टर्स है, कितने काफी सारे क्लस्टर्स हो गए हैं, ये मेगाकैरियोसाइट बढ़ गए हैं, कितने डेंस है, ये देखिए इनके न्यूक्लियाई हाइपर लोब्यूलेटेड न्यूक्लिया है. सो अगर हम मैरो में ऐसे क्लस्टरिंग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेगाकैरियोसाइट्स को देखेंगे, देन इट विल बी, एंड अलोंग विद जेनेटिक म्यूटेशन, तो हम डायग्नोसिस ऑफ एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया का करेंगे. सो ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एंड जब हम उनका सीबीसी करें तभी प्लेटलेट काफी बड़ा हुआ रह सकता है, एंड देन वी माइट सी उसको स्प्लीनोमेगैली एक्सेट्रा भी है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं. एंड अगर उसको सिम्टम्स है तो जो भी प्लेटलेट बढ़ जाने के वजह से जो भी सिम्टम्स आएगा, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली हो सकता है, ये वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो सकता है. So these are all the symptoms in case of ET. So to summarize, so whenever there is a platelet increase, तो दो reasons के वजह से हो सकते हैं. एक तो है प्राइमरी एंड एक है सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब there is a basic problem in the platelet या megakaryocyte, like for example CML, there is a BCR ABL gene rearrangement and उसके वजह से प्लेटलेट ज्यादा हो रहे. पॉलीसाइथीमिया वेरा, सो there is myeloid metaplasia या essential thrombocythemia, तो इसको हम प्राइमरी कॉजेस बोलते हैं, लाइक कैंसरस कंडीशन. सेकेंडरी मतलब लाइक आयरन डेफिशिएंसी हो, हीमोलाइटिक अनीमिया हो, हेमरेज हो, जिससे ब्लड लॉस हो गया एंड बॉडी इज रिएक्टिंग by producing lot of platelets, like in case of infections, acute and chronic infection, some medicines, post-splenectomy. So all these are the causes of secondary thrombocytosis. So how will we approach a case? Suppose आपने सीबीसी किया एंड वो पेशेंट का नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 1,50,000 to 4,50,000. सपोज 4,50,000 आया तो वी विल कॉल इट एज थ्रोम्बोसाइटोसिस. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज प्राइमरी और सेकेंडरी. तो हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे पेशेंट को हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है क्या, या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, हेडेक है, माइग्रेन है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कोई सिम्टम है क्या, उसका सीआरपी देखेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है उसको, ब्लड फिल्म में देखेंगे कोई डिस्प्लास्टिक सेल्स हो या ब्लास्ट हो एक्सेट्रा, एंड उसका आयरन स्टडीज भी करेंगे. क्यों ये सभी करेंगे? क्योंकि दिस आर ऑल द कंडीशंस की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लेटलेट बढ़ सकते हैं. सो हमको डिफरेंशिएट करना है कि ये प्लेटलेट प्राइमरी कॉज से बढ़े हैं कि सेकेंडरी कॉज से बढ़े हैं. तो अगर 4 to 6 वीक्स के बाद में हम पेशेंट का फॉलोअप करेंगे, रिव्यू करेंगे, तब उस टाइम में अगर प्लेटलेट काउंट कम आ जाता है तो कुछ भी करने की हमको जरूरत नहीं है. बट सपोज अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 4,50,000 से ज्यादा ही है इवन आफ्टर 4 to 6 वीक्स, तो हमको उसका वर्कअप करना चाहिए होगा. इसका प्लेटलेट काउंट मोर देन 1000 into 10 raised to 9 है, एंड अगर उसका प्लेटलेट काउंट मोर देन
6 लैक्स है एंड उसको थ्रोम्बोसिस भी हुआ है, उसके साथ प्लीनोमेगैली है, तो हमको उसका बोन मैरो करके देखना पड़ेगा, जेनेटिक म्यूटेशंस करके देखने पड़ेंगे टू रूल आउट ये ईटी है या सीएमएल है या पॉलीसाइथीमिया वेरा है. सो दिस इज हाउ वी विल वर्कअप. जस्ट उसका प्लेटलेट 4,50,000 से ज्यादा आ गया तो हम उसको ईटी है या सीएमएल है या कैंसर है ऐसे नहीं बोल सकते. हमको पहले रिएक्टिव कॉजेस को रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं वो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं, कहीं ये पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. बट आफ्टर गिविंग इवन 4 to 6 वीक पेशेंट का परसिस्टेंटली ही वो ज्यादा ही है उसका प्लेटलेट काउंट, इट इज मोर देन 1000 into 10⁻⁹ या मोर देन 6 lakhs है, या उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स है स्प्लीनोमेगैली या जेनेटिक म्यूटेशंस या वेनस थ्रोम्बोसिस या हेडेक, माइग्रेन ऐसे सिम्टम्स, देन वी शुड वर्क अप दैट पेशेंट्स and rule out the primary causes like ET, CML, PV, etc. So this is about thrombocytosis. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.